Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 10, special purpose book first, that is cash book. Cash book is also called subsidiary book, or it is also called a book of prime entry, book of original entry, or as well as a subsidiary book. देखो कैश बुक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਹ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ business transactions are numerous and it becomes difficult to record all the transactions in one book of primary entry, that is journal book. For example, in a business many transactions may relate to receipts and payment of cash, sale of goods and their purchase on cash basis. It is convenient to maintain a separate book for each type of transactions, one to record cash transaction, another to record credit purchase of goods and another to record credit sale of goods. Book of this type is called a book of original entry or primary entry. It is a special form of journal or a subdivision of journal. Journal entry is not passed for the transaction. This is the main important point to be kept in mind, that journal entries need not to be passed for the transaction recorded in such books. In such books means recorded in cash book, recorded in credit sale, that is in sales book or purchase book. They are directly posted in the ledger accounts. क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਸੇਲ ਬੁੱਕ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੇਲਸ ਬੁੱਕ for credit sale of goods, purchase book for credit purchase of books ठीक है and as well as sales return book and purchase return book means another type whenever returns are made that is previously sold and in case they are returned back and purchases return in case we are returning the goods to the creditor for any other reason. So in case we are maintaining separate purpose means separate books are maintained with the journal, then we need not to pass a journal entry in the journal book and not in these books also, and they are directly posted in the ledger accounts means जो भी related ਸਾਡੇ ledger accounts ਬਣਨੇ ਆ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲਸ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣੇ these books of original or prime entry are also called special purpose book or special journal or subsidiary books ਠੀਕ ਆ subsidiary books ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ first cash book is also subsidiary book, special purpose book, book of original entry, prime entry or principal book ठीक ਆ and ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ sales book, purchase book, sales return book, purchase return book and another is journal proper ठीक है these are also called subsidiary books, special purpose book ठीक है special journal and special purpose book ठीक है देखो सब डिवीज़न ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ फर्स्ट इज़ कैश बुक
ठीक है। फर्स्ट जी साडी सब डिवीज़न जो असी जर्नल नू सब डिवाइड करना है कि असी जर्नल दे विच क्योंकि अगर असी सारियां टाइप दियां ट्रांजेक्शन एक ही बुक च रिकॉर्ड करांगे तो साडियां बिजनेस विच ट्रांजेक्शनस बहुत होंदियां बट उहदे नाल फिर साडे जिहड़ा जर्नल दा जिहड़ा कह सकते हैं कि उहदा वॉल्यूम जिहड़ा आ बहुत हैवी हो जाता है। असी जर्नल दे बर्डन नू लैस करन दे लई उहनूं घटाउण दे लई असी साइड बाय साइड जड़ियां अदर जिन्होंने असी कहने सब डिवीज़न ऑफ जर्नल सबसिडरी बुक्स या उन्होंने स्पैशल परपज़ बुक कहने वो मेनटेन करनी है। ठीक है जर्नल दे नाल ही। ठीक है फर्स्ट मेनटेन करांगे कैश बुक एंड कैश बुक इज़ टू रिकॉर्ड रसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ ओनली कैश मीनस जो भी साडियां ट्रांजेक्शन जिन्हां दे विच कैश इनवॉल्व है गया चाहे असी रिसीव किया है चाहे पेमेंट की है वो असी कैश बुक दे विच रिकॉर्ड करनी है। ठीक है इनकलूडिंग बैंक रसीट्स एंड पेमेंट एंड कैश बुक दे विच असी बैंक ट्रांजेक्शन जड़ियाँ मीनस असी कोई चैक रिसीव किया या चैक पेमेंट की है किसी नूं ठीक है पेमेंट जी चैक के थ्रू रिसीव की या चैक के थ्रू पेमेंट की है वो भी असी कैश बुक च रिकॉर्ड करांगे। वो कैश बुक की अनदर टाइप होंदी है मीनस वो अगे काइंड्स असी पढ़ांगे। ठीक है तुसी याद रखना कि कैश बुक विच ओनली कैश रिलेटेड एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही असी रिकॉर्ड करनी है। ठीक है सैकेंड इज़ परचेज बुक। देखो परचेज बुक का नाम ही तो सानू जड़ा क्लीयर हो जाता है कि परचेज बुक दे विच सिर्फ असी परचेज जड़ियाँ कीतियां होंदियां गुड्स उन्होंने रिकॉर्ड करना टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स मीनस क्रेडिट परचेजेस जड़ियाँ असी गुड्स कीतियां नॉट एसेट्स एसेट्स जिहड़े असी क्रेडिट ते परचेज कीते आ वो असी परचेज बुक विच नहीं रिकॉर्ड करनी ये तुसी याद रखना है। ठीक है परचेज बुक दे विच असी जड़ियाँ गुड्स ही असी क्रेडिट ते परचेज करते हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करनी एंड सेल्स बुक विच असी क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स मीनस जड़ियाँ गुड्स असी क्रेडिट ते सेल कीतियां सिर्फ वही रिकॉर्ड करांगे नॉट क्रेडिट सेल ऑफ एन एसेट क्रेडिट जिहड़ा असी एसेट सेल किया वो नहीं रिकॉर्ड करना। परचेजेस रिटर्न बुक ठीक है एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट ओनली दिस बुक इज़ used to record only return of goods that we have previously परचेजड ऑन क्रेडिट जड़ियाँ असी पहला क्रेडिट ते परचेज कीतियां सिर्फ वही गुड्स असी जो रिटर्न करांगे उन्हां दी रिटर्न नूं असी परचेजेस रिटर्न बुक विच रिकॉर्ड करना है। ठीक है एंड सेल्स रिटर्न बुक विच टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली सोल्ड ऑन क्रेडिट जड़ियाँ असी पहला क्रेडिट ते परचेज सेल कीतियां सी गुड्स वो जदों असी रिटर्न करांगे किसी रीजन का करके तो उन्हां नूं असी किहदे विच रिकॉर्ड करांगे सेल्स रिटर्न बुक विच। ठीक है and last is journal proper is used to record the transactions which can't be recorded in any of the above books means जिन्होंने असी कैश बुक परचेज बुक सेल्स बुक परचेजेस रिटर्न सेल्स रिटर्न दे विच असी नहीं रिकॉर्ड करते उन्होंने ट्रांजेक्शन असी जर्नल प्रॉपर दे विच रिकॉर्ड करना मीनस रेजिड्यूल बुक भी इनू कह सकते हैं कि जो साडियां रेजिड्यूल ट्रांजेक्शनस बच गई जड़ियाँ किसी बुक च असी इन्हां बुक्स विच रिकॉर्ड नहीं कीतियां उन्होंने असी जर्नल प्रॉपर च करांगे जिद्दां मेनली सेल्स परचेज बुक दे विच असी क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट जिहड़ा वो नहीं रिकॉर्ड किया। ठीक है अगर कैश असी एसेट परचेज किया वो तो असी कैश बुक विच रिकॉर्ड कर लांगे बट जिहड़ा क्रेडिट असी एसेट परचेज किया ठीक है वो सेल्स बुक ते परचेज बुक विच नहीं जाना मीनस या परचेज या सेल किया वो फिर असी किहदे विच रिकॉर्ड करांगे जर्नल प्रॉपर। ठीक है उस तो बाद सिर्फ हजे असी पढ़ना इस चैप्टर दे विच सिर्फ असी कैश बुक बारे पढ़ना है। ठीक है क्योंकि ये स्पैशल परपज़ बुक फर्स्ट आ जिहदे विच असी कैश बुक ही पढ़ांगे काइंड्स ऑफ कैश बुक पढ़ांगे एंड जिहड़ा नैक्सट चैप्टर आ स्पैशल परपज़ बुक 2 जिन्हों असी अदर बुक्स भी कहने वो सारियां जड़ियाँ साडियां बाकी बुक्स आ परचेज सेल्स रिटर्नस एंड जर्नल प्रॉपर वो असी उहदे विच पढ़ांगे। ठीक है देखो फर्स्ट कैश बुक इज़ एज वी नो बुक ऑफ प्राइम एंट्री जिन्हों असी बुक ऑफ प्राइम एंट्री सबसिडरी बुक और प्रिंसीपल बुक कहने क्योंकि जदों असी लैजर जर्नल के नाल असी साइड बाय साइड कैश बुक मेनटेन की आ फिर सानू जो भी साडियां कैश नाल रिलेटेड ट्रांजेक्शन आ फिर असी जर्नल दे विच नहीं रिकॉर्ड करनी वो असी सारियां कैश बुक दे विच ही रिकॉर्ड करांगे इसलिए इनू बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते क्योंकि असी ओरिजिनल जिहड़ी एंट्री ही वो इहदे विच रिकॉर्ड करनी आ इनू सबसिडरी बुक भी कह दिंदे आ एंड प्रिंसीपल बुक भी कहते प्रिंसीपल बुक मीन
मीनस मेन बुक तुहानूं पता ही लग गया क्योंकि असी रिकॉर्डिंग जिहड़ी कैश नाल जो भी ट्रांजेक्शन आ वो सारियां असी फर्स्टली इहदे विच ही रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, हुण देखो इहदियां फीचर्स की आ। कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शनस मीनस नो क्रेडिट ट्रांजेक्शनस आर रिकॉर्डड इन द कैश बुक। जो भी असी ट्रांजेक्शन क्रेडिट ते कीते मीनस सानूं लिखिया होया कि गुड्स परचेजड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तुसीं वो ट्रांजेक्शन नूं इग्नोर कर देना, उत्ते क्रॉस लगा देना क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन असी कोई भी जिहड़ी आ वो कैश बुक दे विच रिकॉर्ड नहीं करनी क्योंकि इहदा नेम ही देखो कैश बुक आ। कैश बुक मीनस कैश रिकॉर्ड जिहड़ियां ट्रांजेक्शन आ उही करेगा। सैकेंड इज़ बैंक ट्रांजेक्शनस आर ऑलसो रिकॉर्डड। देखो मैं पहला भी आप पढ़िया कि बैंक ट्रांजेक्शन मीनस जो भी असी चैक के थ्रू परचेज चैक के थ्रू पेमेंट रिसीव की या असी चैक पे किया किसी को पेमेंट की थ्रू चैक, वो ट्रांजेक्शन भी असी बैंक जी है कैश बुक च रिकॉर्ड करनी आ। वो किस रिकॉर्ड करांगे जो असी डबल कॉलम कैश बुक बनावांगे मीनस कैश बुक विद बैंक कॉलम। ठीक है, वो रिकॉर्ड करांगे। थर्ड इज़ इट इज़ बैलेंस्ड। बैलेंसड मीनस जो आप लास्ट कोई भी असी अकाउंट जो बनाने हैं, ठीक है, वह असी लास्ट से बैलेंस करते हैं। बैलेंस असी किद्दां कढ़ना कैश बुक का टोटल रसीट के विचों टोटल पेमेंट जड़ियाँ माइनस कर देनी, साडा बैलेंस जिहड़ा कैश इन हैंड वो सानूं पता चल जाएगा। ठीक है, एंड बैलेंस नूं असी की कहना है, बैलेंस इज़ नोन एज कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक सानूं तां मिलेगा जो असी डबल कॉलम कैश बुक बनाईए। ठीक है, अगर सिंगल कॉलम बनाइए तो सानूं सिर्फ कैश का बैलेंस जिहड़ा वही पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इट रिकॉर्ड्स ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। वन आस्पेक्ट मीनस एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट एज वी नो। ठीक है, सानूं पता है कि जिहड़े मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट होंगे आ, डैबिट एंड क्रेडिट, बट इन द कैश बुक वी विल रिकॉर्ड ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। कोई भी साडी ट्रांजेक्शन हैगी आ उहदा असीं सिर्फ एक ही आस्पेक्ट जिहड़ा रिकॉर्ड करना, दैट इज़ कैश आस्पेक्ट। ठीक है, it performs the function of both journal and ledger at the same time. It is the most important feature of cash book that cash book performs the function of both journal and as well as the function of ledger at the same time। means कि क्योंकि देखो असी पढ़िया कि कैश बुक नूं असी बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहने आ, प्रिंसीपल बुक भी कहने आ एंड सबसिडरी बुक भी कहने आ। ठीक है, देखो प्रिंसीपल बुक अगर असी कहने आ तो इट मीनस इट इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ जर्नल, क्योंकि असी मेन जिहड़ा अपनी प्राइम एंट्री सिर्फ असी जर्नल नूं कहने क्योंकि असी फर्स्टली ट्रांजेक्शन जिहड़ियां वो जर्नल 'च रिकॉर्ड करनियां। एंड जो असी जर्नल दे नाल साइड बाय साइड असी कैश बुक मेनटेन कर रहे हैं तो फिर असी जो भी कैश नाल रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसी कैश बुक च करी जानियां। इसलिए असी उन्होंने कैश बुक नूं बुक ऑफ प्रिंसीपल बुक भी कहने, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहने और प्रिंसीपल बुक भी कहने। एंड लैजर भी असी सेम टाइम कहने, क्यों कहने, क्योंकि कैश बुक जिहड़ी असी मेनटेन कर रहे हैं वो साडा लैजर का कैश अकाउंट भी है। ये तुसी याद रखना क्योंकि बच्चे भुल जाते हैं। जदों असी कैश बुक मेनटेन कर रहे हैं एंड कैश बुक तो बाद सानू लैजर पोस्टिंग भी कही है कि कैश बुक मेनटेन करो एंड उस तो बाद तुसी लैजर पोस्टिंग भी करो, तो फिर जदों असी कैश बुक बना चुके हैं तो असी जदों लैजर बनानी है तो सानू जिहड़ा कैश अकाउंट आ वो सानू बनाउण दी जरूरत नहीं पैंदी, क्योंकि कैश अकाउंट असी लैजर विच क्यों बनाउणा हुंदा है, क्योंकि असी कैश इन हैंड जिहड़ा आ वो पता करना हुंदा है। ठीक है, बट अगर असी कैश बुक ही बना ली तो सानू कैश इन हैंड जिहड़ा आ वो तो सानू उहदे बैलेंस तो ही पता लग जाएगा जदों असी कैश बुक का बैलेंस करांगे, तो फिर सानू लैजर दे विच जिहड़ा कैश अकाउंट आ वो सानू नहीं बनाउणा पैंदा। ठीक है, इदां ही अगर असी कैश बुक जिहड़ी आ वो डबल कॉलम बना रहे हैं मीनस बैंक ट्रांजेक्शन मीनस बैंक कॉलम भी असी विच इनकलूड कर लिया, तो फिर सानू जिहड़ा आ कैश एट बैंक मीनस जिहड़ा साडा बैंक का बैलेंस आ वो भी सानू कैश बुक तो ही पता चल जाएगा। फिर सानू लैजर दे विच बैंक अकाउंट भी बनाउण दी जरूरत नहीं पैंदी। इसलिए कैश बुक इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैश अकाउंट एंड कैश बुक विद बैंक कॉलम इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैंक अकाउंट। ये तुसी याद रखना आ, ये बच्चे भुल जाते हैं, मोस्टली गलती यही करते हैं। तुसी याद रखना कि जो तुहानू लैजर सॉरी कैश बुक तो बाद लैजर पोस्टिंग भी किया तो तुहानू कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट जिहड़ा आ वो लैजर दे विच बनाउण दी जरूरत नहीं पैंदी, क्योंकि दोहां दा ही बैलेंस मीनस कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस जिहड़ा आ कैश एट बैंक वो सानू कैश बुक तो ही पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए जिहड़ी कैश बुक आ वो जर्नल दा एंड लैजर दा जिहड़ा फंक्शन आ वो इक्को टाइम ते ही परफॉर्म करती है। ठीक है, उस तो बाद पढ़ांगे असीं
ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस मीनस कैश बुक मेनटेन करन दे एडवांटेजेस की आ सानू। फस्ट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क। देखो अगर असी जर्नल के नाल आपां पढ़िया कि अगर असी सारियां ट्रांजैक्शन जर्नल 'ਚ ही रिकॉर्ड करांगे तो साडा जर्नल का जिहड़ा वॉल्यूम हैवी हो जाएगा। बट अगर असी साइड बाय साइड जिहड़ा असी सबसिडरी बुक्स अगर मेनटेन करते हैं, ठीक है, उहदे नाल फिर साडा जर्नल का जिहड़ा काम आ वो डिवाइड हो जाता है। मीनस एंड जिहड़ा साडा अकाउंटिंग वर्क आ वो भी डिवाइड हो जाता, ठीक है, बिटवीन द सॉरी अमंग द नंबर ऑफ परसनस। उस तो बाद स्पैशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। वो कहते जो असी वैन द सेम वर्क इज़ हैंडल्ड बाय ए पर्टिकुलर परसन फॉर ए कंसिडरेबल टाइम he acquires expertise in it, he becomes more efficient in handling it, thus the accounting activity becomes more efficient। मीनस जो कहते कोई परसन जड़ा आ सेम वर्क हैंडल कर रहा है बहुत टाइम तो, ठीक है, एंड उन्होंने मीनस करी जा रहा वो लगातार कंटिन्यूसली, तो वो एक्सपर्ट हो जाता है, स्पैशलाइज्ड हो जाता है, उनकी एफिशिएंसी जी काम करन दी वो भी इनक्रीज़ हो जाती है। सेविंग ऑफ टाइम। देखो अगर असी साइड बाय साइड सबसिडरी बुक्स मेनटेन कर रहे हैं उहदे नाल साडा जिहड़ा काम आ वो जल्दी हो जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग वर्क। अवेलेबिलिटी ऑफ इनफॉर्मेशन मीनस जो भी असी अगर असी सैपरेट बुक्स जड़ियाँ मेनटेन कर रहे हैं सबसिडरी बुक्स, तो सानू जर्नल नू हर बारी चैक करने की लोड़ नहीं पैंदी। असी सबसिडरी बुक्स खोल के अगर सेल्स बुक की इनफॉर्मेशन लैनी है, ठीक है, सेल्स बारे इनफॉर्मेशन लैनी कि कितनियाँ गुड्स असी सेल या परचेज़ कीतियां, ठीक है, वो असी सेल या परचेज़ बुक तो इनफॉर्मेशन लै सकते हैं। फैसिलिटी इन चैकिंग, ठीक है, चैकिंग देखो जर्नल नू अगर चैक करने च सानू टाइम लगता कि अगर असी सैपरेट बुक्स मेनटेन कीतियां होईयां तो सानू उन्होंने जिहड़ी चैक करना है वो भी ईजीली होगा, ईजीली असी जिहड़ियां एरर्स आ लोकेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। Division of work results in assigning a particular job to a particular person. If an error is committed in recording, responsibility can be easily fixed। क्योंकि सानू पता है कि कैश बुक कहने मेनटेन की है, सेल्स बुक कहने मेनटेन की है, क्योंकि असी काम जड़ा वो डिवाइड किया अकाउंटिंग वर्क। सो वो नाल जड़ी हर एक परसन जिन्हें जिन्हें बुक मेनटेन की है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी बुक ही लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉट फॉर अनदर बुक्स, ठीक है। उस तो बाद देखो असी काइंड्स ऑफ कैश बुक पढ़नी है। देखो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट इज़ सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, एंड अनदर इज़ टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक, जिन्हों असी कैश बुक विद बैंक कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। हुण आपां देखो अज सिर्फ सिंपल कैश बुक ही करांगे। इहदा फॉर्मेट पहला देखो, फॉर्मेट ऑफ सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक की हुंदा है। फर्स्टली देखो तुसी लिखना सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कॉलम कैश बुक, जो भी तुसी लिख सकते दोवां दे विचों, ठीक है। इनू आपां देखो याद रखना कि इनू असी कैश अकाउंट भी कहने हैं, क्योंकि अगर असी सिर्फ सिंपल कॉलम कैश बुक बनाई है तो सिर्फ सानू कैश इन हैंड पता चलेगा, इसलिए इनू असी कैश अकाउंट भी कहने हैं। एंड कैश अकाउंट एज यू नो, कैश अकाउंट इज़ real account according to traditional approach, and cash is an asset account according to modern classification of accounts। so अगर असी एसेट अकाउंट का रूल फॉलो करिए तो यदा देखो एक साइड जी लैफ्ट हैंड साइड सेम, क्योंकि ये लैजर अकाउंट आ, ठीक है, जी लैफ्ट हैंड साइड वो डेबिट साइड होंगी है, एंड राइट हैंड साइड जी क्रेडिट साइड होंगी है। तुहानूं पता है जो सेम चीज़ असी क्रेडिट ते डेबिट ते लिखनी, सेम ही असी जो पार्टिकुलर्स आ क्रेडिट ते लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट डेट पार्टिकुलर्स लेजर फॉलियो रुपीज़ मीनस अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स लेजर फॉलियो रुपीज़ मीनस ये साडी क्रेडिट साइड है, ये साडी डेबिट साइड, ठीक है। एंड डेबिट साइड नूं असी रसीट्स मीनस पार्टिकुलर की जगह ते तुसी रसीट भी लिख सकते हैं, एंड क्रेडिट साइड ते पार्टिकुलर की जगह ते तुसी पेमेंट भी लिख सकते हैं। एंड कैश इज़ मीनस डेबिट साइड जी वो प्लस वाली होंगी है, क्योंकि कैश मीनस डेबिट असी करना वैन इनक्रीजेस एंड क्रेडिट असी करना वैन डिक्रीजेस। जो कैश घट गया उन्होंने क्रेडिट साइड पर लिख दो, जो इनक्रीज़ हो गया उन्होंने डेबिट साइड पर लिख दो। एंड कैश इनक्रीज़ किद्दां होना है, जो सानू कैश जोड़ा वो रिसीव होंदा पिया मीनस रसीट होंदा पिया। एंड जो असी पेमेंट कोई भी करते हैं कैश नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शन की असी पेमेंट की है, कुछ कैश जोड़ा वो खरीदिया असी या कैश एक्सपेंस असी कोई पे किया, ठीक है, वो असी सारे पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करने, साडा कैश अकाउंट जोड़ा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद देखो सिंपल कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड। ये जी सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक आ, उहदे विच असी की रिकॉर्ड नहीं करना। फर्स्टली
नॉन कैश ट्रांजैक्शनस मीनस जो भी साडियां क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ वो असी नहीं रिकॉर्ड करनी है, मतलब जिथे भी तुहानूं क्रेडिट ते कुछ परचेज सेल किया तुसीं उहनूं क्रॉस कर देना, वो ट्रांजैक्शन असी नोट नहीं करनी कैश बुक च। चैक रिसीवड और गिवन, क्योंकि असी सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, ये साडे कोल बैंक कॉलम नहीं हुंदा, सिर्फ असी कैश नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब जो असी चैक के थ्रू पेमेंट की है या असी चैक रिसीव की है पेमेंट, वो असी रिकॉर्ड नहीं करनी, सिंपल कॉलम च नहीं करांगे। कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, जो भी सानू कैश से डिस्काउंट मिलिया या असी डिस्काउंट पे किया वो असी रिकॉर्ड नहीं करना। मीनस कैश डिस्काउंट जोड़ा आ वो ना तो सिंपल कॉलम विच ना डबल कॉलम कैश बुक विच आपां रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि कैश डिस्काउंट च कैश इनवॉल्व नहीं हुंदा। कैश बुक विल नॉट हैव ए क्रेडिट बैलेंस, देखो ये तो आप अगे भी पढ़िया कि जदों आप लैजर दे विच कैश अकाउंट बनाने कैश अकाउंट का कदे भी साडा क्रेडिट बैलेंस जोड़ा वो नहीं आ सकता। मीनस अनफेवरेबल जिन्हों असीं कहने अनफेवरेबल बैलेंस, कैश अकाउंट का कभी भी अनफेवरेबल बैलेंस जोड़ा वो नहीं आता। ठीक है, बैंक का जोड़ा इट मे हैव, बैंक अकाउंट मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, बट कैश बुक और कैश अकाउंट विल नॉट हैव ए क्रेडिट बैलेंस, नैवर एवर। ठीक है, ये याद रखना तुसी। ये सिंपल थ्योरी सी कैश बुक की, पॉइंट्स जोड़े आ उन्होंने बहुत ध्यान नाल याद रखने की लोड़ आ। ठीक है, थैंक यू।